कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। The true meaning of friendship. Never let us forget that we are all thy children, notwithstanding the differences in our culture and creeds. Endow us with the desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help. Whenever or wherever the need service arises, help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner will worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. To the President in this 50th year of our prestigious club, the Inner Wheel Club of Gadarbetgeri, being the President of the club in its Golden Jubilee year is a difficult task with so many responsibility, but with the faith and the support of all members, it been an easier ride. The Rotary Club of Gadarbetgeri has also been supportive. This year, Inner Wheel theme, Shine a Light, still not to complete, but I am sure to it completion with the support of every member working towards it. Our club is completing 50th year of dedicated selfless service. The most service of the mankind. I am proud. Now I request our district chairman Vaishali Lokande to adorn the precious golden collar to our Golden Jubilee President Rajini Patil. And I respect this caller. Our club Gadarbetgeri came into existence
in 1974 with 25 charter members. Srimati Padmalata Manvi as founder president and Srimati Shalini Manvi as secretary. Charter Day was celebrated on 2nd April 1974 at Vijay Kalamandir by first district chairman of 317 Srimati Kamla Iyengar. Mangalamma Manvi, Kusmadevi Malekopmat and all the seniors are the pillars of our club. Earlier, Rotary and inner wheel office bearers installation and other events used to be organized jointly. We did not have building of our own. Members used to host meetings at their own house. Later, iCare Center building was constructed courtesy Dr. R.T. Kulkarni and other Rotarians. Now I request each and every past president and member of Inner Club of Gadag Bedgari has given her contribution while reaching to this benchmark year. My sincere gratitude and thanks to each one of you for your dedication to take Inner Club of Gadag Bedgari to such a greater height. Late PDC Padmalata Manviji was the charter president of Inner Club of Gadag Bedgari. Under her leadership, club has reached to this position. Our beloved soft-spoken PDC Premaji is taking all the efforts to maintain the harmony of club. Under her valuable guidance, all the members have taken tremendous efforts to make this event successful. I would like to specially mention here that this year, President, Secretary and team are all past presidents of the club, and this is their golden jubilee year, so they have given honor to be part of club EC this year. Though we all are going paperless, I am happy to see this team of Gadag Bedgiri under the leadership of President Rajni Patil ji is trying to cope up with all the new technology. I truly admire few of the continuity projects by your club which you are doing since many years, like free eye checkup camp followed by operations, heart checkup camp, bone density checkup, cancer screening, denture camps, women empowerment programs and many more programs. Completing 50 years in Innerville with the continuous service to humanity is not easy. I am proud to be proud of Innerville Club of Gadag Bedgiri for their contribution for the betterment of society. Friends, we all know that Gadag is blessed with the divine presence of Lord Trikuteshwara and Lord Basveshwara. Gadag is famous for Lakundi, the paradise of beautiful temples. It is famous for printing press and known as Mudran Kashi. The Gadag Bedgiri sarees, traditional handloom sarees, is one of the major attractions of Gadag. One more speciality of Gadag is the people with beautiful heart. Our Gadag Bedgiri Innerville members are generous donors too. Proud of you, friends. Friends, my best wishes to all of you on the occasion of this Golden Jubilee celebration. Thank you, President Rajni ji, Convener Prema ji, for inviting me for the Golden Jubilee celebration of your club. And thank you all for listening me patiently. I will not take much time of yours, as we are all eager to listen to Sarita ji. Thank you again, friends. Sarita joined Innerville Club of Elluru, Andhra Pradesh in 1996. She won the Outstanding President and Secretary Award in her district in 1998 and 1996 respectively. As club president, she undertook several permanent construction projects for the community development. Sarita has many firsts to her credit. As District 302 Chairman in 2008 to 2009, she initiated the first joint project of district by donating rupees 3,50,000 to a cancer hospital and started 3 new clubs and revived 1 club. Membership increased by 100 members.
She was the first from District 302 to be elected as the Association Secretary and Association Vice President in 2009 and 2011 respectively. She was the Zonal Coordinator of Mission Mamta for 9 Innerville districts. She has moderated talk shows with many IIW presidents. Master of Ceremonies for the first ever virtual changeover ceremony of International Innerville in 2022. Riding the crest of waves with Elan, she is presently serving as the IIW Treasurer for the second year. She is the third IIW Treasurer from India and first one from District 302. So with this introduction, I present before you today's chief guest, IIW Treasurer Sarita Lunani. इस क्लब का 50 साल किसको कहते हैं 50 इयर्स एंड बहुत कम क्लब्स इंडिया में 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। आपकी जो चार्टर प्रेसिडेंट है पीडीसी लेट पद्मलता मानवी जी, 50 साल पहले उन्होंने एक सीड बोया था। वो सीड आज एक ब्यूटीफुल गार्डन बन गया है 50 साल के बाद, जिसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप 50 इयर्स कंप्लीट नहीं करते। जिसके लीव्स ग्रीन हैं, मतलब आप अभी भी एक्टिव क्लब हो एंड बेयरिंग न्यू फ्रूट्स एवरी ईयर। यस, नए मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं आपके क्लब में, आपकी क्लब तरक्की कर रही है, आपकी क्लब उन्नति कर रही है, आप ऊंचाइयों पर जा रहे हो। सो ये सब, ये आपके पीडीसी एंड चार्टर मेंबर लता पद्मलता जी मानवी जी को आज हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जो कुछ आज है उनकी बदौलत ही हुआ है। और ये जो चार्टर मेंबर्स बैठे हैं, आज आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब हम वेट करेंगे आपके प्लैटिनम जुबली का, और जब आपका प्लैटिनम जुबली होगा मुझे बुलाना मत भूलिएगा। और उस समय ये जो ब्यूटीफुल गार्डन है वो एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट बन जाएगा। और ये 50 साल में मैं सोच सकती हूँ कि आप लोग ने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि उस जमाने में और अभी के जमाने में क्लब चलाने का बहुत डिफरेंस है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, पैसे भी लोग ऐसे डोनेशन बहुत इजीली देते हैं। उस जमाने में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना ईमेल के, बिना फोन मोबाइल के, बिना व्हाट्सएप के क्लब चलाना, आई कैन इमेजिन व्हाट इट मस्ट हैव बीन। और अब सोचिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, कितने बार स्टम्बल किए होंगे, कितने बार गिरे होंगे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहे, थंबा पकड़ के। इसी के लिए आज आपका क्लब 50 इयर्स की जो रोशनी है वो देख रही है। यस, आपके 50 प्रेसिडेंट्स में कुछ प्रेसिडेंट्स अभी आपके साथ नहीं होंगे, बट उनके लेगेसी जो है वो चल रही है अभी भी। एंड ईच प्रेसिडेंट आई एम श्योर मस्ट हैव बीन डिफरेंट, मस्ट हैव बीन यूनिक। हर प्रेसिडेंट ने अपना आहुति में, ये जो यज्ञ है गदग बेटेगिरी की यज्ञ में, आहुति में कुछ कुछ जरूर डाला है उसमें। उसके कारण आपका क्लब आज 50 साल स्वर्ण मंजरी पर पहुंची है। और आपकी जो पिलर्स है, आज आपकी जो पिलर है वो है पीडीसी प्रेमा जी। ये मेरे से 3 महीना से संपर्क में है फोन में, मैडम आपको आना है, आपको हमारे क्लब के फंक्शन को अटेंड करना है। और शी वॉज इन टोटली कॉन्टैक्ट विथ मी। और आज सवेरे जब मैं गदग पहली बार आ रही हूँ, हुबली कई बार आ चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट 317 में भी कई बार आई हूँ, आज सवेरे मुझे इतनी खुशी हुई। मैं जब ट्रेन के कंपार्टमेंट से नीचे उतरी, प्लेटफॉर्म में 10-15 मेंबर्स मुझे रिसीव करने आए थे, इंक्लूडिंग योर प्रेसिडेंट रजनी जी एंड ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स। ट्रेन से लोग बोल रहे हैं ये कोई प्राइम मिनिस्टर आई है कि चीफ मिनिस्टर आई, इतने लेडीज इसको रिसीव करने के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे यह विमल रिसोर्ट में लाए गए और मेरे 2 एड्स हैं, रूपा और ज्योति। कहाँ हो रूपा और ज्योति, जो आज मुझे शॉपिंग ले गए थे और मेरे साथ पूरे समय बिताया। थैंक यू सो मच। नो क्लब कैन डू विदाउट द पास्ट प्रेसिडेंट्स एंड पास्ट प्रेसिडेंट्स के कारण ही क्लब चलती है।
So hearty congratulations and 3 cheers to Innerweal Club of Gatak Betagiri. आज आपके क्लब के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। आपके जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं रजनी जी, 49 पास्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं, ये सब मैं क्या बताऊँ, किससे कंपेयर करूँ। एक नया झाड़ू जब हम लेते हैं और झाड़ू लगाते हैं, बहुत क्लीन करता है, बहुत सफा अच्छा करता है, बट नया झाड़ू को कोने नहीं मालूम कहाँ गंदगी बैठी रहती है। जो पुराना झाड़ू रहता है ना, उसको मालूम है कि आपके घर में गंदगी कहाँ जमा होती है। तो दिस इज द पास्ट प्रेसिडेंट्स। वो इतने कितने भी पुराने हो जाए, कितने भी पुराने हो जाए, आप अगर एक 500 का नोट लेंगे, आप उसको क्रम्पल कर दो, आप उसको कूड़े उसको आप पाँव से दबा दो, कुछ भी करो, उसका वैल्यू तो वही रहेगा ना। तो पास्ट प्रेसिडेंट्स का वैल्यू वैसा ही हमेशा रहेगा। आप उनको बैंक के लॉकर में रख दो, बंद कर दो, या आप खुले आज़ादी दो, या आप उनसे सलाह मशूरा लो, उनका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी क्लब के, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज लाइक द सन एंड द सेक्रेटरी इज ऑलवेज लाइक द मून। दोनों ही चमकते हैं, सन दिन में चमकता है, मून रात को चमकता है, चमकते दोनों हैं। और आप जब बिंदी और पायल का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हम सब औरतें बिंदी पहनती हैं। हम जब बिंदी खरीदने जाते हैं तो कितने का आते हैं एक पत्ता, 20 रुपया, 25 रुपया, आजकल थोड़े फैंसी वाले 100 रुपया। चांदी का पायल, उसका वैल्यू तो आज हजारों रुपया में है, लेकिन फिर भी बिंदी का वैल्यू कम होने से भी हम उसे मस्तक पर पहनते हैं, और पायल का वैल्यू ज़्यादा होने पर भी पायल हमेशा पाँव पर ही रहता है। तो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, भले उनकी एज कम हो, ज़्यादा हो, एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, जो भी हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द चेयर एंड दैट इज व्हाट द प्रेसिडेंट्स ऑलवेज मस्तक पर रहेंगे आप लोग। और जब हम खाना खाते हैं, हमारी 5 उंगलियां, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कैसी है, लेकिन जब खाना खाते हैं तो सब मुंह में जाते हैं बराबर। जब हम लेके खवा लेते हैं तो बराबर हो जाते हैं। वैसे ही आपके क्लब के सभी मेंबर्स, दे आर ऑन इक्वल पावर, हमेशा याद रखिए। और आप सनफ्लावर की खेती देखे होंगे। सनफ्लावर का क्या होता है, जहाँ पर सन होता है उस दिशा में सनफ्लावर घूम जाती है कि नहीं, कभी राइट कभी लेफ्ट, जहाँ सन होता है। लेकिन जिस दिन बारिश आती है या जिस दिन सन नहीं उगता है, तब वो कहाँ देखते हैं। मैं भी आपके जैसे सोचती थी कि वो नीचे झुक जाते हैं। सनफ्लावर्स कभी नीचे नहीं झुकते हैं, वो कभी भी धूप नहीं रहने से, सूरज नहीं रहने से, they look at each other, they give strength to each other, they give energy to each other. So the past presidents of your club, they are the sunflowers. वो आपको हमेशा एनर्जी देंगे और आप हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो ही आपका फायदा है। Yes, I understand जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कुर्सी की गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कभी भी याद रखिए, आप जब सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, फिर जब उतरोगे भी, तो आपको वही लोगों से आपको मिलना है। कैलिफोर्निया यूएसए में, कैलिफोर्निया में रेडवुड फॉरेस्ट है। रेडवुड फॉरेस्ट में वहाँ के जितने भी पेड़ हैं, सबकी ऊंचाई 500 मीटर्स है, उससे कम तो है ही नहीं, और उनकी चौड़ाई है 100 मीटर्स। आप सोचिए, इतना बड़े बड़ा का सर्कमफ्रेंस के पेड़ है, लेकिन उनका जो रूट है ना, वो सिर्फ 1 फीट या 2 फीट का है। लेकिन आज दिन तक भी एक भी पेड़ नीचे नहीं गिरा। सोचिए, 500 मीटर्स का पेड़, हवा इतना आता है, वहाँ तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन एक भी पेड़ गिरा नहीं। क्यों? और रूट इतना छोटा है। उनमें ये खासियत है कि उनके जितने भी रूट्स हैं, वो एक दूसरे को क्लिंग करके, पकड़ के, जकड़ के रखते हैं, इसलिए वो गिरते नहीं हैं। और वैसे ही इनरव्हील क्लब ऑफ गदक बेतगिरी ने 50 साल तक अपने रूट्स को एक दूसरे के कंधा से कंधा मिला के, जकड़ के रखा है। इसलिए आपका क्लब 50 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड सर्विस पूरा किया है। लेकिन एक बात आज मैं और कहना चाहूँगी,
एक मछुआरा था, फिशिंग करने गया, उसको एक बहुत सुंदर सा साउथ सी पर्ल मिला, बड़ा सारा साउथ सी पर्ल मिला, बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा इसको मैं बेचूंगा, मैं घर जाऊंगा, उसके बाद में एक बड़ा सारा घर खरीदूंगा, मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदूंगा, मेरे बच्चों को फॉरेन भेजूंगा पढ़ने के लिए। बड़ा सोचते 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 वो घर पहुंचा और घर पहुंचकर अपनी बीवी को दिखाया और बोला इसको बेचेंगे हम। और हम बीवियां कैसे होती हैं, कभी भी खुश नहीं रहती, हर चीज़ में नुक्स निकालना हमको ज़रूरी होता है। तो वो मछुआरे की जो वाइफ थी बोली इतना अच्छा पर्ल है लेकिन देखो बीच में एक छोटा सा काला सा दाग है, इसलिए आपको दाम नहीं मिलेंगे। अरे वो फिशरमैन को टेंशन हो गया, उसने एक स्किन को पील किया, सोचा वो हटा दूंगा तो काला दाग हट जाएगा, लेकिन काला दाग नहीं हटा। फिर उसने और एक लेयर को पील किया, फिर भी वो काला दाग नहीं गया। तीसरा लेयर को पील किया, फिर भी नहीं। ऐसे पील करते 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 कुछ नहीं बचा। तो पास्ट प्रेसिडेंट्स को मैं ये भी कहूँगी कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको इतने अच्छे से वेलकम करिए और उनमें इतनी खामियां मत दिखाइए कि वो क्लब छोड़ के चले जाएं। और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हो, कर रहे हो, करते आ रहे हो, लेकिन क्या कभी आप पीछे मुड़ के देखते हो कि प्रोजेक्ट हमारा जो है, हम हैप्पी स्कूल बना रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है? एक बार मैं अपने टेलर के पास गई, ब्लाउज सिलाना था मुझे। मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे थे, मैंने बोला टेलर को सुंदर सा एकदम परफेक्ट फिट का ब्लाउज मेरा सिल देना। तो बोला मैम मेजरमेंट दीजिए। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे, शादी में जाना है। टेलर ने कहा अगर आपको परफेक्ट फिट चाहिए हर बार आपको मेजरमेंट देना पड़ेगा। वैसे ही जब आप प्रोजेक्ट करते हैं हर साल उसे देखना पड़ेगा। जब अपने घर में नौकरानी झाड़ू लगाती है या खाना बनाती है, आप क्या करते हो? बार बार जाके चेक करते हो ना, ठीक से बनाई कि नहीं, ठीक से काम किया कि नहीं। वैसे ही प्रोजेक्ट्स को भी हमें देखभाल करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट कर दिया, मेरा टेन्योर खत्म, छुट्टी ले लिया। नो, नेवर लाइक दैट। और दूसरी एक बात जो हम लेडीज में कमी है, केयरिंग और शेयरिंग की। हम शेयर करना नहीं चाहते, हर चीज़ को हम अपने अंदर छुपा के रखना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। सपोज आज मेरे पास 1 रुपी कॉइन है और लता जी बैठी हैं, उनके पास 1 रुपी कॉइन है और हम एक्सचेंज करते, क्या होगा? एक्सचेंज किया, आपने अपना कॉइन मुझे दिया, मैंने अपना कॉइन आपको दिया। आपके पास 1 रुपी कॉइन, मेरे पास 1 रुपी कॉइन। सपोज मेरे पास एक आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है और हम लोग एक्सचेंज करें तो क्या होगा? आपके पास 2 आइडिया, मेरे पास 2 आइडिया, विन विन सिचुएशन है कि नहीं? तो लेडीज शेयर करना सीखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे उतना आइडियाज आपके पास आएगा। और आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं पहले भी सुना चुकी हूँ बट बिकॉज गदग में कभी नहीं सुनाया तो मैंने सोचा आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी फैमिली जो है वो राजस्थान की है और मेरा बर्थ जो हुआ है कलकत्ता में हुआ है और मेरा ब्रॉटअप हुआ है उड़ीसा में, कटक में, और मेरी शादी हुई एलूरू आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में। आपने नोटिस किया होगा ये बात जो मैंने आपको बताया है, सबकी लाइफ असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, मेरी लाइफ डिसेंडिंग ऑर्डर में थी। राजस्थान, कलकत्ता, कलकत्ता से कटक, कटक से एलूर, छोटा सा गांव है जहाँ मैं अभी रहती हूँ। और एलूर जब मैं शादी होके आई 41 इयर्स बैक, वहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था। मैं एक जॉइंट फैमिली, मैं एक राजस्थानी फैमिली से हूँ, मारवाड़ी फैमिली से, एक जॉइंट फैमिली में थी, एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली जहाँ हमें सर ढक के रहना पड़ता था। मेरे ससुर जी 5 भाई हैं, तो 5 ससुर 5 सासू माँ, दादा ससुर, दादी सासू, 9 ननंद, 5 देवर, मैं अकेली बहू। ये था मेरा हाल। और इतने ऑर्थोडॉक्स थे कि मुझे घर से बाहर जाने नहीं मिलता था, सिर्फ किचन में रहो, बच्चों को संभालो। ससुर से बात करना अलाउड नहीं था, हस्बैंड से बात करना अलाउड नहीं था। एक बार मेरे हस्बैंड से मैंने पूछ लिया खाना खा लिया क्या, इतनी जोर से डांट पड़ी कि कोई हस्बैंड से बात करता है हस्बैंड सबके सामने, ओनली प्राइवेटली यू कैन टॉक टू हिम इन योर रूम। तो उस फैमिली से मैं आई और 5 साल तक आंसू बहाए, क्योंकि मैं कलकत्ता की बड़े
एडवांस्ड फॉरवर्ड फैमिली जिसमें बोलते हैं वहाँ पर थी, जहाँ मेरे मम्मी और मेरे दादाजी मिल के बात करते थे आमने सामने। ये कहाँ मैं कहाँ पहुँच गई। शादी के 7 साल बाद मेरी एक फ्रेंड मुझे ले गई रोटरी की मीटिंग में। उस समय वोकेशनल मंथ सेलिब्रेशन रोटरी का चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा दिस इज द वे आई वांट टू बी, दिस इज द क्लब आई वांट टू ज्वाइन। तो मैंने वहाँ हमारे पीडी जी थे, उनसे पूछा मुझे रोटरी ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा यू डोंट हैव अ वोकेशन, यू कैन नॉट ज्वाइन रोटरी, सॉरी मैम। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप इनर व्हील ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन इनर व्हील ज्वाइन करने के लिए उस जमाने में हस्बैंड को रोटेरियन होना ज़रूरी था, और मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं था रोटेरियन बनने का। बट यू नो हाउ वी लेडीज आर, जब हमें कोई साड़ी चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, हुक और बाई क्रुक कैसे भी करके हम वो टारगेट ले आते हैं, अपने हस्बैंड को मना लेते हैं वो साड़ी दिलाने, वो ज्वेलरी दिलाने। हाँ कि ना? यस। मैंने भी मना ही लिया मेरे हस्बैंड को, आप रोटेरियन बन जाओ, और वो रोटेरियन बने तो मैं इनर व्हील मेंबर बनी। मेरी इनर व्हील की जर्नी शुरुआत हुई 1996 में, और 98 में मुझे क्लब प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्लब में बहुत यंग और एंथुसियास्टिक थी। एवरीडे प्रोजेक्ट करने का दिल करता था रजनी जी के जैसे, लेकिन चली तो जाती थी। जब मैं वापस आती थी सबका मूड ऑफ, मुंह फुला के सब बैठे रहते थे घर में, क्योंकि उन्हें लगता था ये क्लब जा रही है, पता नहीं क्या करके आ रही है। और सास ससुर ने तो बात करना बंद कर दिया। सासू जी बोली नहीं, एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था बड़ी नाराज है। और हस्बैंड ने बहुत डांटा कमरे में जाके कि ये तुम अपना क्लब वाला काम बंद करो, घर में अशांति हो रही है, प्रेसिडेंटशिप छोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। यू नो हाउ डिटरमिन्ड वी विमेन कैन बी। जब हमें कुछ करना होता है तो हम कुछ भी करेंगे। मैंने बोला मुझे 2 दिन का टाइम, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँगी, मैं इतना जल्दी में नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन सोचा, बहुत सोचा, गहराई तक सोचा। आर्किमिडीज के जैसे मुझे एक आइडिया आई, और मैंने अपनी सासू माँ को प्रोजेक्ट्स में ले जाना शुरू कर दिया।